Okay, today will be a little different kind of experience. Hybrid model. ठीक है. Already I think सुबह थोड़ा बहुत experience तो हो ही गया. आज तो नहीं कि कोई नया है. तो how did you like it? क्या feel हुआ different है? मतलब normal class से क्या different feel हुआ? बहुत time waste हो गया. किस लिए मतलब? अच्छा setup और ये हो. हाँ वो तो इसमें भी बहुत time waste हुआ. अब क्या करें? पर चलो I think आज first day है तो शायद ज़्यादा time waste हुआ. कल से शायद time waste होगा जरूर. But थोड़ा कम होगा. That's what I can say. So anyway, actually we were in the middle of discussing circular motion. अगर उस तरफ ना अगर ऑनलाइन में कोई ऑडियो प्रॉब्लम या कुछ ऐसे आता है तो प्लीज बता देना so that ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है that is from प्रियंका that is CPT कब है? तो CPT कब है? परसों है. देखो सब लोगों ने बता दिया भाई परसों है. तो प्रियंका तैयारी कर लो. ओके प्रियंका के साथ जा सकते हैं. You must be knowing it. Yeah, at least quite a few must be knowing it. ठीक है. So anyway, we were discussing circular motion, so that's where that's what we will be continuing अभी. तो सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हमने उस दिन किया था कि जैसे ग्रेविटेशन में मतलब सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशन की वजह से है ना जो अर्थ मूव कर रहा है. In fact, any object moving in a circle has to experience some centripetal force provided by some force. Now which force? Well, depends on the situation. ठीक है. तो आज हम लोग एक बड़ा प्रैक्टिकल जो सिचुएशन करेंगे and that is a car. Car when it takes a turn in a circular road, let's say, when I'm turning my back to the board, क्या मेरा आवाज पहुंच रहा है उधर? So just give me yes or no. Yes, sir. So I'm just turning myself back and please tell me whether you're getting the sound or not. The car is moving like this. So let's say this is a car, some kind of a model. Okay. And let's say moving with some speed v. And let's say the radius of the road which it is negotiating is suppose r. हाँ जी बेटे audible थे? अच्छा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य से इसकी I had missed last week's class तो आपने क्या कराया था? ये तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट हुआ otherwise लक्ष्य would have continued to miss the classes. अब क्या करें? This is a very strange kind of situation अभी. ठीक है. Even I don't know where to look at this side or to the camera or whatever. Confusion. चलो ठीक है. Anyway, yes your turn. Car moving in a circle. Who is providing the centripetal force? Normal direction. Okay, tell me one thing. If the car is moving, let's say like this, the centripetal force is required like this because it has to be toward the center of the circle. Now, in which direction normal direction acting? I am pointing the center. In which direction normal direction acting here? No, forget about this. This is a car. The car is moving in a circle. Okay. So normal direction is this side. Normal direction has to be perpendicular to the surface. Which surface are we talking about here? Ground. No. I'm talking about the car itself. So in this time, I'm studying the car itself. So if the car is negotiating a turn, and there is a circular road, I mean, who is providing the centripetal force? Normal direction is like this, isn't it? Perpendicular to the surface. Centripetal force is required in that case. So how can normal direction provide the centripetal force? Huh? Keep thinking. Your turn. Okay, friction is providing the centripetal force that is required in this case, and that is the circular motion. ठीक है ना? बिल्कुल सही. तो friction is back. So therefore, can I say like this? Now, when I say friction, which friction? Static, limiting, kinetic? Huh? Kinetic. Are you sure that it's kinetic? So when does kinetic happen and when does static happen? जब बॉडी मूव करते हैं तो kinetic very dangerous आंसर. इसमें हमने कई बार डिस्कस किया है. दोबारा सोचो. Yes, your turn. Static, kinetic. Static होगा. लेकिन कार तो मूव कर रहा है. जल्दी बेटे. कार मूव कर रहा है इसलिए kinetic. अच्छा kinetic कब होता है? जब सिस्टम या जो सरफेस होता है आपस में रब करते हैं, है ना? तो क्या इसमें kinetic होगा? क्या ये गाड़ी रब करते हुए चल रहा है रोड के ऊपर? नहीं चल रहा है. तो it has to be what? Static. No, but static कैसे? बॉडी तो चल रहा है.
देखो जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हम लोग भी तो चलते हैं तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ये देखो मैं चल रहा हूँ, एक स्टेप लिया मैंने, नाउ माय फीट इज ऑन द ग्राउंड एंड देन दिस फीट इज ऑफ कोर्स इन द एयर नाउ, लाइक हवा में आ चुका है। नाउ इट हैज मेंटेन्ड कांटेक्ट विद द ग्राउंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड व्हाइल वॉकिंग। ये देखो ऐसे फिर ऐसे बॉडी आगे चला गया, लेकिन क्या दो सरफेसेस आपस में रब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली सेम हैपेंस विद द कार आल्सो। वो सरफेसेस इन कांटेक्ट रहते हैं बट स्लिप नहीं करता। So therefore the friction that will be there will be what? Static. The friction that will be experienced by the car will be what? Static. So static friction is going to provide the required centripetal force. So I can even write a mathematical expression also, that is F is equal to mv square by r. Okay, fine. Next question. Yeah, if I increase the velocity, what will happen? Now this is a question for everybody. उधर से भी एक तो आंसर्स आ रहे हैं. One has said friction, but सिर्फ friction नहीं बेटे. Which friction I was also asking? Aadhar has said static. ठीक है. हाँ बेटे. कौन सा force? Let's talk about friction. Centripetal force कौन दे रहा है? Friction दे रहा है ना. Let's talk about friction. So if I increase the velocity, friction will increase automatically. Yes. Why? Because friction generates automatically. उसके लिए कोई अलग से कुछ करना नहीं पड़ता. वो खुद ही जनरेट कर जाता है. For example, I'm standing right now vertically. बिल्कुल सीधा स्टैंड कर रहा हूं. ग्राउंड पे फ्रिक्शन अवेलेबल है या नहीं है? हाँ जी अवेलेबल है. क्या फ्रिक्शन जनरेट हुआ है इस वक्त? हाँ बेटे अभी नहीं हुआ, लेकिन अवेलेबल है, पर जनरेट तो नहीं हुआ. यही होता फ्रिक्शन का नेचर. वो खुद ही अपने आप को जनरेट कर लेता है. So when I ask the question as to whether it is automatic or not, the answer is yes, it is automatic. It automatically develops itself. ठीक है. So when I increase the velocity, the friction increases. Can I increase the velocity indefinitely? No. Why not? नहीं, वो तो चलो इफेक्ट बता रहे. आई एम आस्किंग अबाउट वेरी स्पेसिफिकली. कैन आई इंक्रीज द वेलोसिटी इंडेफिनिटली? व्हाई नॉट? If the velocity is increased, just now it was said that if the velocity is increased, friction increases. ठीक है. चलो फ्रिक्शन इतना जल्दी काइनेटिक नहीं. पहले हम क्या बोलेंगे? As the velocity increases, friction increases, but friction cannot increase beyond a certain level, which is called as लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. उससे ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता. एंड देयरफॉर Vmax कैसे निकलेगा ना? व्हेन आई अप्लाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना. अच्छा, जिस समय Vmax चल रहा है उस समय उसका मैथमेटिक्स क्या होगा? हाँ, तो क्या क्या लिखूं फिर मैं यहाँ पे? म्यू n और n मतलब mg, mm कैंसिल, यानी Vmax is equal to under root of what? Mu rg. इसका मतलब क्या है कि while negotiating, Hitat has asked a question, and that is ये mv square by r कहाँ से आया? Chances of skidding are there. Dhruv is saying a comment. Okay, mv square by r इस तरीके से आया कि एक्चुअली हमने जो पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ओमेगा स्क्वायर आर. याद करके देखो, हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिराइव किया था ओमेगा स्क्वायर आर. तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिराइव किया था ओमेगा स्क्वायर आर, बट isn't b is equal to omega? So can't I substitute omega as v by r? Right? So therefore this will become v by r whole square into r, which is equal to v square by r. तो मैंने वही डायरेक्टली लिख दिया. ठीक है, I hope that's okay. चलो, so that's how the v square by r is coming. Of course, this was a question from the other end, and that is Hitat, but चलो कोई नहीं. I think it was useful for everybody. हाँ बेटे. हाँ, वो मुझे लग रहा था, लेकिन क्या ना कि इधर तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि इधर बाउंड्री लगा है. ये कैमरा ऐसा है ना कि इस बाउंड्री से. What other option is there? Then can you move to this chair, or even this one also? Just for a period. अभी 5-10 मिनट और है, मतलब मुश्किल से अभी. चलो, anyway, तो like Vmax आ गया under root of mu rg. Now, what do you mean by this Vmax? इसका मतलब क्या हुआ? यानी क्या होगा? अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, है या नहीं? ओके, अब एक प्रॉब्लम समझो. क्या जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो क्या मुझे रोड का म्यू पता रहता है?
क्या मुझे रोड का रेडियस पता रहता है? नहीं ना। यानी एज ए ड्राइवर आई कैन नेवर नो व्हाट इज द Vmax. See, try to understand the practical problem. As a driver, I can never know the value of Vmax. So how will I know with maximum velocity, with what maximum velocity I can negotiate a turn? तो जनरली मैं क्या करता हूँ फिर एज ए ड्राइवर क्या करता हूँ, स्पीड को काफी कम कर देता हूँ and then negotiate the turn and then move ahead. Now tell me, if you have to repeat it, and we know the roads are never straight for a very long period of time, so therefore repeatedly you have to brake, that is slow down, then negotiate the turn and then again pick up speed. Isn't it disadvantages in every respect? Number one, fuel efficiency कम हो जाता है, बार बार ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर दबाना, यानी क्लच, गियर, ये सारे में वेयर एंड टियर होता है. नॉट ओनली दैट, बार बार स्पीड कम ज्यादा करने से क्या होता है, टायर और रोड में भी वेयर एंड टियर होता है, एंड सो ऑन. वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर अस एंड वेरी डिसएडवांटेज फॉर द ड्राइवर आल्सो. वो देखना बार बार क्लच ब्रेक ये वो करते करते द ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिकम्स अ वेरी नाइटमेयरिश काइंड ऑफ थिंग. जबकि अगर मान लो अगर फ्री जैसे मान लो काफी दूर तक मैं जा सकता हूं, तो दैट केस दैट विल बी अ गुड एडवांटेज, है नहीं? एंड दैट्स व्हाई especially in foreign countries where the speeds are very high, where you cannot risk negotiating a turn at those high speeds, तो क्या किया जाता है, रोड को टेल कर दिया जाता है, and those are called as, yes, those are called as, हाँ हाँ पीछे घूमी हुए, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, हाँ जी हाँ, बैंक रोड्स, दैट्स राइट. तो इसलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा क्या ना, बैंक रोड्स. बैंक रोड्स में क्या करते हैं, बैंक रोड्स में क्या करते हैं हम लोग, रोड को एंगल पे रखते हैं. ऐसे रोड देखा है क्या, किस तरीके के एंगल पे रोड कहीं पे देखा है? अच्छा हाँ देखिए, चलो तुम बताओ कहाँ देखा है? फ्लाईओवर. नहीं वो अलग स्लोप है बेटा. हाईवे में जो रोड का थोड़ा सा स्लोप रखता है ना, ऐसा हल्का सा, दैट इज फॉर वाटर मैनेजमेंट. कि वो स्लोप रखो तो वाटर एक तरफ आ जाता है, अगर एकदम हॉरिजॉन्टल बनाओ ना तो बीच में पडल्स बन जाता है. और अगर रोड को थोड़ा सा एक तरफ टिल्ट करो हल्का सा, जस्ट अ फ्यू डिग्रीज, वो बैंक रोड्स नहीं है. वो बैंक रोड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं. दैट इज डन सो दैट वाटर कम्स ऑन वन साइड एंड देन यू गेट ड्रेनेज ऑन द साइड्स एंड द वाटर विल कलेक्ट इन द ड्रेनेज एंड देन गो. सो दैट इज नॉट द बैंक रोड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक रोड एज अ डिस्टिंक्ट एंगल, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री, अच्छा खासा एंगल होता है. ऐसे रोड किसी ने देखा है इंडिया में? हाँ जी भैया, वो रेसिंग ट्रैक्स में देखे होंगे बट रियल लाइफ में देखे हाईवेज में, कॉलोनीज में. ओके हाँ, पहाड़ों में तो बेटा अलग वजह से होता है. लेट्स नॉट मिक्स अप द थिंग्स. ओके नहीं वो अलग चीज. पहाड़ों में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखो अगर तुम स्ट्रेट करते हो ना, तो दैट केस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग अपवर्ड अवे फ्रॉम द दिस थिंग. तो अगर मान लो साइड में रोड है और अगर ये पहाड़ी है और मान लो यहाँ पे रोड है और गाड़ी यूं जा रहा है, तो उसकी टेंडेंसी स्लिप करने का बाहर. तो जनरली क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं सो दैट उसके बाहर की तरफ की टेंडेंसी ना हो कि अंदर की तरफ टेंडेंसी हो, तो बच जाएगा शायद. चलो खैर, नाउ लेट्स कम बैक. बैंक रोड इंडिया में बनाना बहुत मुश्किल है. उसके पीछे समझो रीजन है कि ज्यादातर जो रोड्स होते हैं ना, वो देखना एग्रीकल्चर लैंड के बीच में से जाते हैं. अब मोस्टली क्या होता है, एक जने का प्लॉट इस तरफ भी रहता है, खेत उस तरफ भी रहता है. अब अगर तुमने रोड यूं बना दिया तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, किसे छलांग लगाएगा? सोच के देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. और जिसके वजह से क्या होता है, इंडिया में बैंक रोड बनाना बड़ा मुश्किल है. यू विल ऑलवेज लैंड अप इन अ डिस्प्यूट, फिर वो कोर्ट में चला जाएगा, देखो फंस जाएगा, रोड भी नहीं बनेगा. बैंक रोड तो दूर की बात है. ठीक है ना. हाँ, रेसिंग ट्रैक्स इज राइट. रेसिंग ट्रैक्स में मिल जाता है कि वो वहां तो स्पेशली ट्रैक बनाया जाता है, वहां पे कोई खेत के बीच में से ट्रैक तो नहीं निकालते. वो स्पेशल जगह होता है जहां पे से बनता है, इसलिए आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू. चलो एनीवे, बैंक रोड का मैथमेटिक्स. ठीक है. अच्छा तुम अगर फॉरेन कंट्री में चले जाओगे ना, वहां पे पता कैसे होगा, एक तो स्पीड्स वहां जबरदस्त होते हैं. तो वहां पे पता कैसे होगा, जहां पे बैंक रोड होगा ना, यानी जहां पे टर्निंग होगा बैंक रोड होगा, उसके 8-10 किलोमीटर पहले से देखना बड़े बड़े साइन बोर्ड्स मिलेंगे. तो लेफ्ट टर्न अहेड 10 किलोमीटर, सॉरी लेफ्ट टर्न 10 किलोमीटर अहेड, यानी एक लेफ्ट टर्न आने वाला है 10 किलोमीटर आगे, पहले से नोटिस बोर्ड में लग गया, बड़े बड़े वो लगा देते हैं. फिर उसमें एक स्पीड भी लिखा रहता है, ड्राइव एट 180. यहाँ तो हमारा गाड़ी बंद कर देंगे अगर 180 पे चलाओगे तो वहां पे ऐसे ही होता है स्पीड से. तो ड्राइव एट 180. नाउ व्हाई इज दैट इंस्ट्रक्शन?
जबकि एक्चुअली पता चला उस हाईवे में मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड है पता चला 250 है। लेकिन जहां पे टर्न होता है वहां पे देखना है उसमें प्लेकार्ड या बड़े बड़े बोर्ड्स पे लिखा रहेंगे कि लेफ्ट टर्न है 10 किलोमीटर आगे है, ड्राइव एट 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर दैट? यस, वो 180 क्यों लिखा जाता है? हां बेटा, बीच में जो नो आइडिया। हां जी बेटा, थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है। Okay, let me tell you the reason. Reason is something like this, that if you look at the car or whatever is negotiating the turn, this is the back side view. ये कार को मैं पीछे से देखूं, so that is the view. And the car is actually negotiating the road like this. ठीक है? तो ये हो गया उसका normal direction, ये हो गया उसका mg, normal direction mg। ये जो normal direction है ना, उसके एक component इधर आ जाएगा, क्या आएगा? m cos theta। क्यों? क्योंकि ये थीटा होता है, और ये हो गया n sin थीटा। ठीक है? नाउ ये जो 180 लिखा रहता है उसके पीछे रीजन है, मैं वो उसी पे आ रहा हूं। एक चीज बताओ, ये जो गाड़ी है ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कैन आई से दैट द कार इज इन इक्विलिब्रियम इन द y axis? If that is the case, can I then say that n cos theta has to be equal to mg? N cos theta has to be equal to mg. Can I say that? Okay. Now, can I also say that in this case, that n sin theta in this case will provide the required centripetal force? So can I write the second equation as n sin theta is equal to centripetal force, which is mv square by r. R is the turning radius, so mv square by r. अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? ना 2 को 1 से डिवाइड करना, ये 2 है, ये 1 है, तो डिवाइडेड 2 by 1, what do I get? n cancel, sin theta by cos theta, tan theta. Tan theta is equal to mm cancel, v square by r upon mg वाला g, then equal to v square by rg. मैं इस इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकता हूं। एक है tan theta is equal to v square by rg, और दूसरा v is equal to under root of rg tan theta। ठीक है? भाई बात से एक ही तो इक्वेशन है, दो अलग-अलग तरह से लिखने क्या फायदा? Excuse me, sir. कुछ नहीं, तो बस एक शॉक से लिखा मैंने। But let's understand one deeper thing is that, have you noted one thing? I have not introduced friction in the free body diagram. जबकि देखो दुनिया में ऐसा कोई एक ही जगह है क्या, कोई रोड वगैरह कुछ भी कहीं पे भी जहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो? आंसर इज नो। There is no place in the universe. There is no place in the universe where there is no friction. It cannot be. So therefore, you might say कि friction क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि मैं जो अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं वो है आइडियल केस। You know, I was just commenting a little bit while earlier, 2-3 minutes back earlier that ये friction अगर होता है, in that case wear and tear of everything start होगा। Road and tire, clutch and clutch plate, gear के gear and gear gear between gears, ठीक है ना, brake shoe, सब जगह जो है ना फ्रिक्शन का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन से मैं किस तरीके से बच जाऊं, तो मैंने इसी तरीके से या इसी सोच से मैं ऐसे तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं इन द टर्निंग, सो दैट the other forces manage to provide me the centripetal force. Friction in this case will not come into the picture, and therefore this will be the exact ideal velocity. अब सुनना है मैंने क्यों दो तरीके से लिखा। ये है वो 180, 170, 160, 180, 90 जहां जैसे हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो रोड कैसे बनेगा। यानी अगर इस वेलोसिटी से चलते हो, इन दैट केस फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक्शन के कंपोनेंट से तुमको सेंट्रिपेटल फोर्स मिल जाएगा, सेंट्रिपेटल फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द एडवांटेज। आर यू फॉरगेटिंग? ये हो गया वो वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स कर देता हूं, सपोज मैं तुमको कहता हूं मुझे ना इस रोड पे टर्निंग करना है, इस रेडियस वाले रोड पे टर्निंग करना है, लेकिन स्पीड मुझे 200 रखना, अब तो रोड डिजाइन करो बैठ। इन दैट केस आई विल यूज द फर्स्ट। क्या तो v डिसाइड हो गया ना 200 किलोमीटर पर आवर, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना अपना। रेडियस ऑफ द रोड दिया रहेगा भाई, ये रेडियस ऑफ टर्निंग है, g तो मालूम ही है, यानी कि उससे tan थीटा यानी एंगल ऑफ बैंकिंग निकल आएगा। यानी किस एंगल पे तुम रोड को रखोगे जिससे कि आइडियल केस क्रिएट हो, यानी फ्रिक्शन का जरूरत नहीं।
नाउ यू माइट से क्या फ्रिक्शन कभी पिक्चर में नहीं आएगा? ध्यान से अगर इस आइडियल स्पीड से चलोगे तो फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्या तुम शायद आइडियल केस में हर केस में हर वक्त जाओगे? नहीं। जैसे मान लो उस रोड पे तुम अभी तक चल रहे थे 220 किलोमीटर पर आवर से, अब तुम चलते चलते देखो अरे बाप रे तो 180 बोल रहा है, अब क्या करें? 180 कर लें? इट्स एन ऑप्शनल थिंग। अगर तुम अपने गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा करना चाहते हो, वेयर एंड टियर कम चाहते हो, टायर का, गियर का, क्लच का, ब्रेक शू वगैरह वगैरह, इन दैट केस स्पीड कम करके 180 कर लो, तो वो जो टर्न होगा उसमें नेगोशिएट अच्छे से करोगे और तुम्हारी गाड़ी का जो वेयर एंड टियर वो ऑलमोस्ट नील होगा। खैर नील तो नहीं होते बट ऑलमोस्ट नील होगा। ये वो आइडियल लॉस। बट दैट डज नॉट मीन कि तुम अगर 190 पे चलाओगे तो तुम कोई क्राइम कर रहा है, कुछ नहीं। उसमें हाई स्पीड लेट्स से 250 किलोमीटर पर आवर, तुम 220 पे चल रहे हो, तो अगर तुम चाहो तो तुम शायद 190 पे जा सकते हो, 200 पे जा सकते हो। बट अगर ऐसे जाओगे तो दैट केस क्या होगा? जरा सोचो, अगर मैं सर्कल में जा रहा हूं तो डोंट आई फील एज समथिंग इज पुशिंग मी आउटवर्ड्स? ये हम लोग फील करते हैं, ये तो गाड़ी को भी फील हो रहा है। तो अगर मान लो इससे ज्यादा स्पीड तुम करोगे, इन दैट केस क्या होगा? तुम और ज्यादा रजेक्ट कोई बाहर की तरफ धक्का मार, तो इन दैट केस won't this car tend to slip outwards? So if I let's say increase the velocity from that ideal speed of let's say 180 km per hour, तो क्या होगा? Now friction will start coming into the picture. अगर तुम velocity को more than v ideal करोगे, velocity को more than v ideal करोगे तो friction का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ जी, velocity को मैं more than v ideal कर दूंगा तो friction का डायरेक्शन क्या होगा? towards center वाला वर्ड बोलते ही मैं थोड़ा सा रोकूंगा। और कुछ तरीके से बताना चाहोगे? See, you know the answer, but you're still giving it wrong. नहीं, centripetal force का डायरेक्शन नहीं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? डाउन द इंक्लाइन होगा। मतलब प्रॉब्लम इज व्हेन यू यूज द वर्ड्स कि मैं उसको सेंटर की तरफ कहूंगा तो सेंटर की तरफ यहां, यानी फिर तो हॉरिजॉन्टल होगा फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल नहीं है, डाउन द इंक्लाइन। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने वेलोसिटी को एक्सीड कर दिया, यानी क्या मैं गाड़ी को और स्पीड से चला रहा हूं, तो गाड़ी एक्चुअली बाहर की तरफ स्पीड करना चाहता है, तो therefore there will be friction generated and so on. अब सपोज मैं कहता हूं कि और थोड़ा तेज करो, तो क्या होगा? और थोड़ा सा फ्रिक्शन जनरेट होगा। पहले मान लो इतना जनरेट हुआ था, अब और बढ़ गया फ्रिक्शन, और थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाओगे और फ्रिक्शन बढ़ेगा एंड सो ऑन। सो फ्रिक्शन will continuously increase when you go on increasing the velocity till again that friction cannot exceed what? Limiting. तो therefore अब मेरा डिस्कशन अलग है। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो था आइडियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए इस कर्व को या इस सर्कल को नेगोशिएट करना विद द बैंक रोड। अब मेरा डिस्कशन है कि इस रोड पे अगर मैं थोड़ा और तेज चलाना चाहता हूं, मान लो मुझे जल्दबाजी है, किसी वजह से इमरजेंसी है, तो मैं क्यों 180 पे जाऊं? मैं थोड़ा और ज्यादा तेजी से जाना चाहता हूं, पर ऐसे भी ना करो कि पता चले इतना तेज कर दो अपने वेलोसिटी कि पता चला पलटी खा जाए या स्किड कर जाए, वो भी नहीं होना चाहिए ना। सो आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द Vmax। तो Vmax कब होगा? Vmax जिस वक्त होगा उस समय का मैथमेटिक्स या फिजिक्स क्या होगा? जिस समय Vmax होगा उस समय का मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी कहना चाहता हूं क्या होगा? ओके, एक दो क्वेश्चन इधर से भी है, मैं ले रहा हूं। हाँ बेटे, नहीं मैंने बोला था कि उसके मैथमेटिक्स या फिजिक्स में क्या चेंज करो। इस डायग्राम में क्या इंट्रोड्यूस करोगे? अगर मान लो Vmax वाला स्टेज पे पहुंच चुका हूं तो फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज लिमिटिंग। यानी क्या लिखूंगा मैं यहां पे? अब मैं लिखूंगा म्यू है। यानी अब मेरा डिस्कशन क्या है? आइडियल नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी। जिस समय मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उस समय क्या होगा? ये फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू एन। इसलिए डायग्राम थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस म्यू एन को कंपोनेंट कर लो। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? म्यू एन cos थीटा, और ये हो गया म्यू एन sin थीटा। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या क्या आता है? क्या आता है? In the meanwhile, there is a question that is from one is from Aviral, that is ये R किसके along ले रहे हैं? R होता है ये वाला। अगर मान लो ये सेंटर है ना, तो ये रोड है मान लो, तो वो रोड का यानी हॉरिजॉन्टल R is being measured horizontally. The first question, एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है,
अदरवाइज हमने नॉर्मल के कंपोनेंट्स क्यों लिए, यू नो हम तो इंक्लाइन के अलोंग और वो भी कंपोनेंट कर सकते थे, है ना। तो याद करके देखो, उसके लिए मैंने क्या बताया हुआ कि जिधर एक्सीलरेशन होता है या टेंडेंसी एक्सीलरेशन होता है, एक एक्सिस उसके अलोंग सेट करने के लिए, है ना। इस बार एक्सीलरेशन कौन सा है, सेंटीमीटर है, तो यानी वोंट इट बी गुड कि मैं एक्सिस ऐसे ले लूं, सो दैट एक एक्सिस सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के अलोंग हो। यही तो होता है ना तरीका एक्सिस चूज करने का। याद करके तो मैंने बताया था फर्स्ट डे जब न्यूटन को इंट्रोड्यूस किया था कि एक्सिस चूज करने का तरीका क्या है, एक्सिस चूज करो जिधर एक्सीलरेशन होता है उस तरफ, दैट्स इट। तो ये एक्सीलरेशन आ, आई होप नॉट्स ओके। तो देयरफॉर अब मैं अगर इसके साथ बनाता हूं तो दैट केस में वो म्यू एन cos थीटा, इस बार क्या हो गया, तो फ्रिक्शन का भी मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को संभाल रहा था या प्रोवाइड कर रहा था, इस बार n sin थीटा के साथ फ्रिक्शन का मदद मिल रहा है, इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक यस यू गाइड मी द मैथमेटिक्स, x और y का इक्वेशन जल्दी बताओ, y का इक्वेशन पहले बताओ। n cos theta is equal to mg, बस mg, एक और कितना है mg plus mu n sin theta, हां तो उसको छोड़ क्यों दिए, प्लस mu n sin theta, चलो ठीक है। दूसरा इक्वेशन बेटे, n sin theta plus mu n cos theta, हां, is equal to mv square by r। is equal to mv square by r। चलो ठीक है, तो एक काम करें, पहले वाले से n उठा के दूसरे वाले में डाल देता हूं, आई थिंक विल मेक सेंस। तो देयरफॉर है ना, mv square by r is equal to n into sin theta plus mu cos theta, तो sin theta plus mu cos theta तो कॉमन ले लो, और n क्या है जरा ध्यान से देखो, n क्या होगा, mg by cos theta minus mu sin theta, इस वाले इक्वेशन से। तो n के जगह पुट कर रहा हूं मैं mg by cos theta minus mu sin theta, ठीक है। m तो खैर कैंसिल हो गया, देयरफॉर v max कितना हो गया, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो v स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ। एक मैनिपुलेशन और करूंगा, वो ये है कि लेट अस डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा है नहीं, और एक rc तो है ही है, तो अंडर रूट ऑफ rc, sin थीटा बाय cos थीटा विल गिव इट tan थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा इज 1, एक म्यू है, म्यू को तो लिख सकता हूं ना tan थीटा, so therefore let's write it as tan theta। इतना सारा चीजें ध्यान रखना होता है। यू नो लक्ष्य is also asked another question, that is मोटरसाइकिल का राइडर भी तो टिल्ट करता है, we will come to that। और tan theta plus tan theta by cos theta से डिवाइड करो 1 माइनस म्यू को लिख लो tan theta, ये भी cos theta से डिवाइड करके tan theta, तो 1 minus tan theta into tan theta r, यानी v max will be equal to under root of, v max will be equal to under root of rg tan theta plus theta। Excuse me, sir. ठीक है, v max will be rg of tan theta plus theta। Okay, one last question for you, that is, can I drive at infinite speed? Well, of course we cannot exceed speed of light, but theoretically speaking, can I drive at infinite speed? Is that a possibility? No, we cannot। यानी तुम जितना मर्जी तेज चलाओ कभी स्पीड नहीं करोगे, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकता है, जितना मर्जी तेज चलाओ तुम स्पीड नहीं करोगे, ऐसे रोड कुछ बना दो, क्या ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है? लेट्स सी इफ देयर इज एन आंसर ऑन दिस साइड। ओके, इधर से भी नो ही आंसर आ रहे वैसे तो, ध्रुव हैज सेड कि नॉट पॉसिबल, या एनी अदर आंसर फ्रॉम दिस साइड, ऑफलाइन, ऑनलाइन में नो आया, एक ही आया सर क्या चीज? अच्छा। एक क्वेश्चन आया था कि मैं उस समय जानबूझ के अवॉइड कर दिया था इधर कि ऑफलाइन में आज आए कितने so people are curious तो एक काम करेंगे, क्लास एंड करने के पहले ना एक बार कलेक्ट करके स्ट्रेंथ दिखा देंगे चलो हाँ, क्या क्वेश्चन है कि can I ride at infinite speed? So to say infinite speed तो वैसे भी फिजिक्स में अलाउड नहीं है,
फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट को तुम पार नहीं कर सकते, तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बार, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग इन बिटवीन. Sir, am I audible? Excuse me, sir. Denominator तो कुछ है नहीं. Okay, yeah, somebody was saying your turn. Exactly. अगर मान लो if theta plus theta is greater than or equal to 90 degree, means there is no upper limit. यानी तुम जितना मर्जी तेज चलाओ, जितना तुम्हारे गाड़ी का इंजन अलाउ करता है, तो स्किड नहीं करो. वो एक्चुअली देखो थीटा प्लस थीटा इज 90 डिग्री मींस बड़ा एंगल है. बड़ा एंगल का मतलब क्या होता है? ये रोड ऐसे स्टीपली बनाया गया. ऐसे स्टीपली रोड कहीं देखा है क्या? हाँ बेटे, ऐसे स्टीप रोड कहीं देखा है? कहीं ड्राइव करना चाहोगे ऐसे स्टीप रोड? नहीं, कभी नहीं. मौत के कुआं, दैट्स राइट. इस दिन हम लोग किसी कंटेक्स्ट में शायद एक बैच में बात हो ही रहा था, एंड दैट इज मौत के कुआं में इसलिए जानबूझ के पता क्या किया जाता है? ऐसे बनाया जाता है उसका वेल स्लाइटली कोनिकल, सिलिंड्रिकल नहीं बनाते हैं, स्लाइटली कोनिकल. इससे क्या होता है? थीटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और थीटा आर फ्रिक्शन वाला है, तो थीटा प्लस थीटा आर क्या होगा? डेफिनेटली मोर देन 90 डिग्री होगा. यानी अब इसमें ना अपर स्पीड नहीं है, इसमें लोअर स्पीड है. कई बार देखना मौत के कुआं में वो जो दे ड्राइव दोस कार्स और इवन बाइक्स आल्सो, ठीक है ना, देखना यू ऐसे करके, और उसके साइड में देखा लोग खड़े रहते हैं जो पैसे देने वाले होते हैं, वो देखते हैं अरे वाह क्या फास्ट चल रहा है. इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड. इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड. वो फास्ट चल रहा है तो सेफ है. कभी एक बार जरा पूछ के देखना उनको, थोड़ा स्पीड स्लो करके दिखाओ जरा, वो नहीं करेंगे, बोले पैसे वापस लो और जाओ घर. हम स्लो नहीं करने वाले, ये हमारा जान तो इसी में अटका हुआ. ये बहुत फास्ट चल रहा है इसलिए सेफ है. क्यों? बिकॉज़ फास्ट चलता है, इन दैट केस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है. फिर अगर मान लो ऐसे केस में इफ थीटा इज वेरी लार्ज, इन दैट केस देयर इज अ रिवर्स थिंग आल्सो, कि यू कैन नॉट ड्राइव एट टू स्लो स्पीड. अगर टाइम है आज तो उसको भी कर लेते हैं, टाइम तो शायद खत्म ही हो. Sir, am I audible? अब you know what, this is the art actually. कभी इनके ना वीडियोस देखना, सब YouTube में अवेलेबल है. अच्छा, तुम्हें उतरते हुए सवाल पूछ रहे हो, चढ़ते कैसे? ये सवाल भी तो पूछना चाहिए था. हाँ, अब सुनो, इसका जो डिजाइन होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है. उसका डिजाइन ऐसे होता है, यहाँ पे गोलाई सा होता है. You know what they do? कभी इनके जो स्टार्टिंग को देख लेना, यानी गोलाई मतलब समझ लो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, फिर यहाँ हल्का सा गोलाई होगा, और फिर देखना वो कुआं का जो कोन है इस तरफ और इस तरफ, तो वो चारों तरफ कोन है. तो व्हाट दे डू इज दैट राइडिंग ऑन द बाइक और कार व्हाटएवर इट इज, तो फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सीलरेटर देंगे, तो उससे क्या होता है? गाड़ी यूं करके फिर वापस आ जाती है. पीछे आ गए, फिर थोड़ा सा और एक्सीलरेटर मारेंगे, तो इस बार थोड़ा और ऊपर जाएंगे, फिर वापस आ जाते हैं. अभी सब सीधे सीधे चल रहा है. एंड देन दे स्लोली पंप इट अप. तो फिर क्या होगा? यहां से ऐसे हुआ, वापस आ गए, यहां से ऐसे हुआ, वापस आ गए, यहां से ऐसे हुआ, वापस आ गए. अब एक बार हिम्मत करना होता है, बस ये हिम्मत का खेल है और कुछ नहीं है. क्योंकि इसमें सारा कुछ साइंस बचाता है इसको. इस राइडर को, ड्राइवर को, कार वाले को, बाइक वाले को साइंस बचाता है. उसको कुछ नहीं करना पड़ता, बस हिम्मत होना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, और कुछ नहीं. फिर क्या करेंगे? अब तो काफी क्लाइंब करने लायक स्पीड एक बार हो चुका, हो गया ना. अब पता क्या करेंगे? हिम्मत करके जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे ना, जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ा सा, तो वो क्या करेंगे? अपना स्टीयरिंग को या मतलब जो हैंडल है उसको घुमा देंगे. यानी इस तरह लाइक दिस नाउ व्हाट विल हैपन इज लाइक दिस एंड देन टर्न, और तब तक सफिशिएंट स्पीड हो चुका है. तो क्या होगा? अब क्या होगा? जितना स्पीड बढ़ाएंगे ना, उतना देखना वो क्लाइंब करने लगेंगे. अब उल्टा कर लो, जितना स्पीड कम करोगे देखना उसका वो जो है हाइट नीचे होता जाता है. नीचे होते 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 एकदम जमीन के आसपास आ जाता है. फिर एक बार हिम्मत करके ब्रेक लगा के फिर वो जमीन पे लेके आओ. तो लाइक इट्स अ प्रोसेस एंड दे हैव टू टेक स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट ऑब्वियसली. ठीक है ना? चलो, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लास. आई मीन आई थिंक इट्स ओवर ना. Sir, am I audible? एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी आल्सो एंड हियर. आज तो सब